السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آٹو کیڈ سے جیسے ایک سینٹر لائن ہے، اس کے ہر 10 میٹر کے کوآرڈینیٹ بغیر کسی لسٹ کے ہم ایکسل میں کیسے لے جا سکتے ہیں، اور پھر ایکسل میں آپ یوز کر سکتے ہیں پرنٹ کی شکل میں، یا اس کو ٹوٹل اسٹیشن میں کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں۔ خیر ٹوٹل اسٹیشن کا جو ٹاپک بہت لگا ہے، لیکن میں آپ کو بیسیکلی جو چیز بتانا چاہتا ہوں، جیسے میرے پاس یہ سینٹر لائن ہے، یہ ہر 10 میٹر پہ اس کو ہم کوڈ لائن کے ساتھ سیٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب سمپلی آپ دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ نہیں اس کے لیے کہ نئی فائل کھولتے ہیں آٹو کیڈ کی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس میں آپ بڑا آسان ہے، بڑا ایزیلی آپ اس کے آف سیٹ کے بھی کوآرڈینیٹ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ سمجھ جیسے یہ ایسی لائنمنٹ ہے، یہ لائنمنٹ روڈ کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ چیز ہم سول 3D میں کرتے ہیں، لیکن یہ آٹو کیڈ میں بھی سمپل ہے۔ ہم یہاں پہ اسٹورم کا کام کر رہے ہیں، اسٹورم واٹر کا، تو یہ اس کی لائنمنٹ ہے۔ تو اگر آپ کو آف سیٹ پہ چاہیے ہوں گے، مثال کے طور پہ آپ کو ایکسیویشن کے یا روڈ پہ اسفلٹ کاٹنے کے، تو سمپلی آف سیٹ، ٹھیک ہے، آپ کو 2.5 میٹر پہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمپلی یہاں سے سیٹ کریں اور لائن 2.5 میٹر اس طرف، 2.5 میٹر اس طرف، یہ ساری کی ساری پوری لائن جو ہے یہ پر 10 میٹر پہ آف سیٹ کے ذریعے ہم نے پہلے سے تیار کی ہوئی ہے۔ آپ اس چیز کو کیسے تیار کریں گے تو آئیں ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ایک بلینک ڈرائنگ کھولیں، اس میں آپ 2 کوآرڈینیٹ انٹر کریں، بھی اسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوریجنل ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے فارمیٹ پہ جائیں، پوائنٹ اسٹائل، ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ آپ سیٹ کریں۔ اس کے بعد اپنے کمانڈ بار سے POI، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوآرڈینیٹ انٹر کریں 663751.578 کاما 2740843800، ٹھیک ہے، انٹر کر دیں۔ اسپیس بار دوبارہ پریس کریں، 663607.026۔ آپ یہاں کاما بھی پریس کر سکتے ہیں، اور اپنے کی بورڈ سے لیفٹ سائڈ سے 3rd رو ہے ٹیب کا بٹن بھی دبا سکتے ہیں۔ میں ابھی پہلے میں نے کاما پریس کیا تھا، ابھی میں ٹیب دبا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ڈائنامک طور پر دوسری سائڈ پہ آ جائے گا، 2740755.178 انٹر کریں۔ ہمارے کوآرڈینیٹ لگ چکے ہیں، لیکن ہم کو شو نہیں ہوئے۔ اپنے ماؤس سے جو سینٹر میں جو اس کا ویل ہے اس کو 2 دفعہ دبائیں، ٹھیک ہے۔ زیڈ انٹر، یہ انٹر، یہ ہمارے پاس کوآرڈینیٹ لگ چکے ہیں۔ ابھی سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے، یہاں سے لائن کو لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ لگا دیں۔ یہ ہماری ایک سمپل لائن ہے، ٹھیک ہے، سمپل لائن ہے یہ۔ اگر اس کو آپ 10 میٹر پہ کیسے ڈیوائڈ کریں گے، ٹھیک ہے، 25 میٹر پہ کیسے ڈیوائڈ کریں گے، تو اس کے لیے آپ کو سمپلی اس کی ڈائمینشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی لمبی ہے، اس کی لینتھ کتنی ہے۔ تو سمپلی یہاں سے سیٹ کریں، پہلے کنفرم کریں کہ اس کی جو ڈائمینشن ہے وہ کتنی ہے۔ اس کے لیے آپ 160 میٹر ہے، ٹھیک ہے، 160 تھوڑا سا زیادہ کر کہ آپ کو ایزیلی ہو جائے گا۔ اس کو کلک کریں، یہ ٹیکسٹ کو کھولیں، ٹھیک ہے۔ ٹیکسٹ میں آپ یہاں سے اس کی جو ہائٹ ہے یہ اسے انکریز کریں، 10 کرتا ہوں، زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا 2.5 کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس شو ہو گئی 160 میٹر اس کی لینتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کا کام نہیں ہے، ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اوکے۔ یہ اس کی جو لینتھ ہے وہ 160 میٹر ہے۔ آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ نے اس لینتھ پہ، اس سینٹر لائن پہ، ٹھیک ہے، کتنے میٹر پہ کوآرڈینیٹ چاہیے۔ اگر آپ روڈ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو 25 میٹر پہ چاہیے ہوں گے۔ اگر آپ کو اسٹورم واٹر کا کام کرنے سے ہم کر رہے ہیں تو پر اسٹیشن 10 میٹر کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی چیز آپ آف سیٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یہی چیز آپ کرو پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے کہ سمپلی آپ رائٹ کلک کریں اور کیلکولیٹر کو یہاں سے اوپن کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی جو لینتھ ہے وہ 160 میٹر ہے، ٹھیک ہے، 160 میٹر ہے۔ آپ کو جتنے میٹر پہ کوآرڈینیٹ چاہیے، اگر آپ کو 25 میٹر پہ چاہیے تو آپ 160 کو ٹوٹل لینتھ کو 25 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے۔ اگر آپ کو 10 پہ چاہیے، پر 10 میٹر پہ، تو آپ اس کو ڈیوائڈ
टोटल लेंथ को पर 10 पे करेंगे तो वो सेगमेंट क्रिएट करते हैं कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 10 पे, ठीक है। तो हमारे पास जो रिप्लाई, सॉरी दोबारा यहाँ ले लेता हूँ, डिवाइड 10, हमारे पास जवाब आया 16, यानी कि 16 हिस्सों में हम इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास पर 10 मीटर के कोऑर्डिनेट क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के लिए DIV डिवाइड, ठीक है। अभी नीचे देखिए वो कह रहा है डिवाइड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको अपने डिवाइड करना है। तो मैं कहता हूँ ये लाइन है, अभी वो कह रहा है डिवाइड इंटर 10 नंबर ऑफ सेगमेंट, कितने सेगमेंट में हमको डिवाइड करें। तो हमको चूँकि 10 मीटर पे चाहिए तो हम इसको 16 सेगमेंट पे डिवाइड करते हैं, 16 इंटर, उसने इसको 16 सेगमेंट में डिवाइड कर दिए। हम इसकी डायमेंशन चेक करते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ से 10 मीटर और 3/8 माइक्रो, ओके। इसके बाद आपने कोऑर्डिनेट कैसे बगैर रेस्ट्रिक्ट करने को दिखाने के लिए पॉली लाइन लें। यहाँ से पॉली लाइन लेने के बाद सिंपली हर पॉइंट को आप मेमोरी सेलेक्ट करें, ठीक है। मेमोरी सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए जैसे ही मैं इस पॉइंट पे जा रहा हूँ तो ये गोल सा एक शो हो रहा है जो स्नैप कर रहा है, इसको नोड कहते हैं। बाज़ वक़्त क्या होता है कि जब आप काम कर रहे होते तो ये नोड एक्टिव नहीं होता, इस नोड को एक्टिव करने के लिए, ठीक है, पॉली लाइन इस्तेमाल करने से पहले, जैसे मैंने ये पॉली लाइन भी लगा ली है, मेरा एक्टिव है, आप अपने कमांड बार से OS इंटर करेंगे, ये आपके पास विंडो खुली होगी, ठीक है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि यहाँ पे ये नोड सेलेक्ट होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ये अनचेक होता है। अगर यहाँ से ये चेक है और यहाँ से अनचेक है तो आपका काम नहीं होगा, ठीक है। आपने यहाँ से भी नोड को भी चेक करना है और यहाँ से इसको भी चेक करना है, ओके करना है। तो फिर आप जैसे ही लाइन लेंगे आप ऐसे करीब जाएंगे तो ये स्नैप कर जाए, इसमें स्नैप कर जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये सेट कर लिए पॉइंट आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब यार सिंपली यहाँ से एक्सेल को खोलें, ठीक है। हम एक्सेल खोलते हैं, एक्सेल की सिंपल फाइल, ठीक है। दोबारा ऑटोकैड पे जाएं, अभी हमने करना क्या है, हमने कमांड बार से LIS लिस्ट, ठीक है, लिस्ट को स्टार्ट पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करें, पॉली लाइन, ठीक है, अपने स्पेस बार से स्पेस बार का बटन दबाएं, ठीक है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट इसके आ चुके हैं, ठीक है। ये इसकी टोटल लेंथ बता रहा है, ठीक है। ये एरिया इसका 0, ये इसके XY कोऑर्डिनेट है। हम यहाँ से इसको कॉपी करें, राइट क्लिक, फिर कंट्रोल भी कर सकते हैं, एक्सेल में जाएँ, यहाँ पे कंट्रोल राइट क्लिक करें, पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये सब के सब एक सेगमेंट में, ठीक है, ये डिवाइड नहीं है, हमको सिर्फ ये चाहिए, ये इसके ये जो है ना ये वाली, सॉरी देखिए हमको सिर्फ ये जो इसके XY कोऑर्डिनेट है ना ये वाले, मैं यहाँ से इसको सेट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। हमको इसके ये ईस्टिंग ये नॉर्थिंग चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड पॉइंट, यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, ठीक है। ए से पहले अपने स्पेस बार से मैनुअली स्पेस इंटर करें और इसको एग्जैक्ट कर दें बिल्कुल एक जैसा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अगर आपने ये नहीं करना अपने कीबोर्ड से कंट्रोल H प्रेस करें, ठीक है। कंट्रोल H प्रेस करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है एट पॉइंट, ठीक है, ये बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ रो कॉलम के साथ, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे डबल क्लिक करें और ए से बिल्कुल टच करके अपने माउस से लेफ़्ट दबा के रखें और ये जो स्पेस है इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद कंट्रोल C, यहाँ पे फाइंड व्हाट, यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल V कर दें और रिप्लेस विद यहाँ पे करें, स्पेस बार एंटर कर दें और रिप्लेस ऑल, ओके। ये सारे के सारे जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अभी आपने क्या करना है, कॉलम वाइज इसको सेलेक्ट करें, रो वाइज सेलेक्ट नहीं करना, कॉलम वाइज, ठीक है। डाटा पे जाएं, टेक्स्ट टू कॉलम, तो यहाँ पे ध्यान रखें कि आपके पास ये फिक्स विड्थ चेक होना चाहिए, ना कि डिलिमिटेड। अगर डिलिमिटेड है तो यहाँ से फिक्स विड्थ कर लें। इसके बाद नेक्स्ट, अभी ये जो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं ये चीज़ शो कर रहे हैं कि कितने कितने हिस्सों में शुरू करना है। तो हमको बेसिकली ये एक्स की फिगर चाहिए और वाई की फिगर चाहिए, लेकिन चाहिए हमें एक्स के बाद, यानी ये बराबर से के बाद और 6 से पहले। हम यहाँ पे एक एरो लगाते हैं, सिंपली आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगा, 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। सिंपली 1 क्लिक करें, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, और नेक्स्ट और फिनिश। इसमें एक्सेल ने
सबको डिवाइड कर दिया अलग हिस्सों में। अभी हम सिंपली यहाँ से इनको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और डिलीट, ठीक है, इसको भी राइट क्लिक और डिलीट, वो भी हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा इनको मैनेज कर लें। होम पे जाने के बाद इनकी डेसिमल फॉर्म एक जैसी कर लें, ठीक है। थोड़ा सा इसका स्क्रीन बड़ा करते हैं ताकि हमको थोड़ा सा देखने में आसानी है, ठीक है। इनको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी और अपने ऑटो कैड पे चलते हैं, ठीक है। अभी कंट्रोल वी करते हैं, इनको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, हमने पेस्ट कर दिया। अभी ये जो चीज़ थी कि हमने एक्सेल से ऑटो कैड में लिए गए थे बगैर किसी रिस्क के। अभी हमने यही कोऑर्डिनेट अगर इन पॉइंटों में शो करने हो बगैर किसी रिस्क के, तो उसके लिए हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से जाएँ लीडर पे, एक सिंपली लीडर सेलेक्ट करें, ठीक है। स्पेसिफिक लीडर एरो लोकेशन, हमको ये लोकेशन चाहिए इसकी, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद जैसे ही ये चीज़ आपके पास आ गई है, ये बिल्कुल इसमें साथ मिली हुई है। थोड़ा सा इसको आप सिंपली खोल लें। यहाँ भी आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है, और सिंपली आप कंट्रोल F भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए बेहतर हो कि आप यहाँ से राइट क्लिक करें और ये इंसर्ट फील्ड, ठीक है, इसको सेलेक्ट करें। इंसर्ट फील्ड को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये विंडो खुलेगी। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑल है, आप इसको दोबारा खोलें, चेक ऑल है। आप इसको करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट करें, ऑब्जेक्ट। जैसे आप ऑब्जेक्ट करेंगे आपके पास एक और विंडो खुलेगी इस तरीके से। यहाँ से आप ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये वाला आपका एरो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट किया आपके पास ये एक क्रॉसहेयर आ जाएगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें। अभी ये हमसे ऑब्जेक्ट पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा समझें, ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये नुक्ता लगा हुआ है उससे कोऑर्डिनेट है। तो हम सिंपली इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद ये हमारे पास एक विंडो खुलेगी, ठीक है। कलर, लेयर, लाइन टाइप, इसमें से हमको सेलेक्ट करना होगा पोजीशन, यानी जिस जगह पे ये मौजूद है। जैसे हम पोजीशन करेंगे तो हमारे पास ये प्रीव्यू आएगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स मीन हमारी ईस्टिंग, वाई मीन हमारी नॉर्थिंग। एलिवेशन से हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमारा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारी ये देखिए ऊपर हमारी शो हो रही है ईस्टिंग, ये नॉर्थिंग, लेकिन यहाँ पे इनसे पहले ई नहीं है और यहाँ पे एन नहीं है। उसके लिए अब हमको ये एडिशनल फॉर्मेट पे जाएं, ठीक है। एडिशनल फॉर्मेट पे जाने के बाद ये है प्रीफिक्स और सुफिक्स, ये ऊपर ही प्रीव्यू में दिखा रहा है। यहाँ पे आप ऐसे करें, सिंपली कैपिटल ई क्लिक करें, ठीक है, कैप्स लॉक ई, थोड़ा सा स्पेस दें, ठीक है। ये ईस्टिंग, और यहाँ पे आप सिंपली एन टाइप करें, थोड़ा सा स्पेस दें इसकी इस साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ओके कर दें। ये करने के बाद यहाँ से ओके करें तो ये हमारे पास जो है ना तकरीबन उसने दे दी है। ईस्टिंग हमारी ये है और नॉर्थिंग हमारी ये है। अभी अब चेक करें कि हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 578 5780, ठीक है, 800 800। अभी अब सिंपली करना क्या है, CO कॉपी, ये लीडर और ये पॉइंट, ठीक है। इसको अब यहाँ से क्लिक करें तो हर पॉइंट पे आप इसको पेस्ट करते जाएंगे लीडर को, ठीक है। सिंपली बहुत आसान है। आप इसको यहाँ पे लगा लें, आपको जितने भी कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, शो करने के लिए। लगाने के बाद ठीक है, अभी आप एक चीज़ गौर कीजिए, सबके कोऑर्डिनेट तकरीबन सेम है। वो इसलिए हैं कि हमने इसको भी एक कमांड यहाँ पे और अप्लाई करेंगे। वो कमांड कौन सी है, आर ई रीजन। जैसे ही हम आर ई रीजन करेंगे यानी रीजनरेट, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन जो इनको कोऑर्डिनेट की है ना तो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास पहले कोऑर्डिनेट 578 800, ठीक है। दूसरा है 544 511। चलते हैं 543, तो ये 5 कन्वर्ट होने के बाद 4 हो जाएगा तो 511, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो मैं अपने भाइयों के साथ सर्वे हज़ार के साथ शेयर करना चाहता था। तो इसको आप और अलाइनमेंट भी ऑप्शन पे भी अप्लाई कर सकते हैं और सिंपली कर्व भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कर्व है, जैसे मिसाल के तौर पर ये स्ट्रॉन्ग इंटू रेडियस बड़ी कर्व है, ठीक है, सिंपली कोई भी कर्व हो, जैसे ये इसका रेडियस कितना है 5 कम करते हैं, रेडियस हम इसको रखते हैं 45, ठीक है,
सबसे पहले इसकी भी वही तरीके से इसकी आप आर्क लेंथ चेक करें कितनी आर्क आ रही है, ठीक है, 61 मीटर आ रही है 80 सेंटी। तो जितने हिस्सों में आपको इसके कोऑर्डिनेट चाहिए उसको डिवाइड करने के बाद इस तरीके से ये डिवाइड किया है, इसको डिवाइड कर सकते हैं DI डिवाइड सेगमेंट है, कहते हैं इसको आप 10 हिस्सों में तकसीम कर दें, ठीक है। सिंपली मैंने वैसे ही कर लिए। तो अगर आप इसको चेक करना चाहें, ठीक है, तो आर्क लेंथ सिंपली इसको राइट क्लिक करें और बगैर किसी के यहाँ पे क्लिक करने से पहले राइट क्लिक कर दें और RTL। अभी आप क्या करें, आपको ये हर पॉइंट की लेंथ शो करेगा, यानी 6 मीटर है, ठीक है। तो इसके लिए भी वही चीज़ करनी है जो आपने पहले की है। इसके लिए यहाँ पे आप इसको ऑफसेट अगर आपका 10 मीटर का है, ठीक है, तो इसको आप इनको भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं DI डिवाइड, ठीक है। तो इनको भी आप 10 पे तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। और ये रीजन, ठीक है, तो उसको भी 10 पे डिवाइड कर सकते हैं। हम सिंपली राइट क्लिक करें और डिवाइड की क्वांटिटी अप्लाई कर दें, ठीक है, ठीक है। और ये रीजन, इससे ये होगा कि जब अपने टोटल सेशन से साइड पे जाके कोई चीज़ टेक आउट करनी है तो यहाँ से कोऑर्डिनेट मैनुअली आप कोई लाइन के ज़रिए सेलेक्ट कर लें, ठीक है, सेंटर लाइन या जो भी है कोई लाइन से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इसको यहाँ से सारे करने के बाद, ठीक है, इनके भी कर लें मैनुअली वही चीज़ जो हमने आपने एक्सेल पे यहाँ पहले अप्लाई की है वैसे ही करने के बाद आपको स्टेशन में रखी है उसका प्रिंट निकाल लें, ठीक है, जाके मौके पे स्टिक आउट कर दें। तो बहुत अच्छी चीज़ थी, अपने भाइयों के साथ मैंने शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इनको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।